Hello everyone. Class 12 English Kaleidoscope. Kubla Khan. और A Vision in a Dream, a Fragment. एक सपने में एक दृष्टि, एक टुकड़ा. Understanding the poem. Question 1. Does the poem have a real geographical location? How does the poet mix up the real and the imaginary to give sense of the surreal? प्रश्न 1. क्या कविता में कोई वास्तविक भौगोलिक स्थान है? कवि ने यथार्थ और काल्पनिकता को किस तरह मिलाया है ताकि अवास्तविकता का बोध हो सके? Answer. River Alph is somewhere in Antarctica and the name was coined in the early 20th century. The poet, however, belongs to the 18th century. So, we can safely assume that nobody knew about this river or about Antarctica during those days. उत्तर. अल्फ नदी अंटार्कटिका में कहीं है और इसका नाम 20वीं सदी की शुरुआत में गढ़ा गया था. हालांकि कवि 18वीं सदी का है, इसलिए हम सुरक्षित रूप से मान सकते हैं कि उन दिनों इस नदी या अंटार्कटिका के बारे में कोई नहीं जानता था. During the times of the poet, River Alph could at best be an imaginary river. It was a sacred river which may have connotations with the mythology. The poet has beautifully mixed up the real and imaginary to give sense of the surreal. In nature, rivers flow over the ground, but in poet's imagination this river flowing through caves, that is, under the ground. Poet has also explained the sunlit dome with icy interior which is not possible in the real world. The poet also talks about some other surreal things, like demons, magic, witches, etc. कवि के समय में, अल्फ नदी सबसे अच्छी तरह से एक काल्पनिक नदी हो सकती थी. यह एक पवित्र नदी थी जिसका पौराणिक कथाओं से संबंध हो सकता है. कवि ने वास्तविक और काल्पनिक को खूबसूरती से मिलाकर अवास्तविकता का एहसास कराया है. प्रकृति में नदियां जमीन के ऊपर बहती हैं, लेकिन कवि की कल्पना में यह नदी गुफाओं से होकर बहती है, यानी जमीन के नीचे. कवि ने बर्फीले अंदरूनी हिस्से के साथ सूर्य की रोशनी वाले गुंबद की भी व्याख्या की है जो वास्तविक दुनिया में संभव नहीं है. कवि कुछ अन्य अवास्तविक चीजों के बारे में भी बात करता है, जैसे कि राक्षस, जादू, चुड़ैलें, आदि. Question 2. Pick out. प्रश्न 2. चुनें. 1. Contrasting images that are juxtaposed throughout the poem. एक कविता में परस्पर विरोधी छवियां एक साथ प्रस्तुत की गई हैं. Answer. There are many contrasting images juxtaposed throughout the poem. Some examples are, sunlit dome with icy cold interiors, a river full of motion and lifeless ocean, pleasures of the palace and vagaries of war, etc. उत्तर. कविता में कई विपरीत छवियां एक साथ दिखाई देती हैं. कुछ उदाहरण हैं, बर्फीले ठंडे अंदरूनी भाग के साथ धूप से जगमगाता गुंबद, गति से भरी नदी और बेजान सागर, महल के सुख और युद्ध की अनिश्चितताएं, आदि. 2. Images that strike the eye and images that strike the ear, both positive and negative. 2. वे छवियां जो आंखों को प्रभावित करती हैं और वे छवियां जो कानों को प्रभावित करती हैं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों. Answer. Images that strike the eye, sunlit forest, meandering river, hills, motionless ocean, etc. उत्तर. वे चित्र जो आंखों को आकर्षित करते हैं, सूर्यप्रकाशित जंगल, घुमावदार नदी, पहाड़ियां, गतिहीन सागर, आदि. Images that strike the ear, thundering fountain, stones falling like hail, music, etc. कान को झकझोर देने वाली छवियां, गरजता हुआ फव्वारा, ओलों की तरह गिरते पत्थर, संगीत, आदि. See the words used to describe the movement of water. ग. जल की गति का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त शब्द. Answer. The sacred river meandered through a maze of channels through the forest and the valley. After that the river reached the caves which are too deep and long to be conceived by human imagination. Then the river sank in the lifeless ocean with a roar. Here, the poet has beautifully juxtaposed two contrasting traits, that is, of thundering noise when a river falls in ocean and the calm ocean. उत्तर. पवित्र नदी जंगल और घाटी के बीच से होकर नहरों की भूलभुलैया से गुजरी. उसके बाद नदी उन गुफाओं तक पहुंची जो इतनी गहरी और लंबी थी कि उन्हें मानव कल्पना भी नहीं कर सकती थी. फिर नदी एक गर्जना के साथ निर्जीव सागर में डूब गई. यहाँ कवि ने दो विपरीत लक्षणों को खूबसूरती से एक साथ पेश किया है, यानी जब नदी समुद्र में गिरती है तो गड़गड़ाहट की आवाज और शांत सागर. Question 3. What is the discordant note heard at the end of the third stanza? Can we relate this to the grandeur and turmoil that are part of an emperor's life?
प्रश्न 3, तीसरे छंद के अंत में सुनाई देने वाला असंगत स्वर क्या है? क्या हम इसे उस भव्यता और उथल पुथल से जोड़ सकते हैं जो एक सम्राट के जीवन का हिस्सा है? आंसर, अकॉर्डिंग टू द पोएम, Kubla Khan is fed on honeydew and milk of paradise. This portrays the privileged upbringing of Kubla Khan and intrinsic powers he had due to his privileged upbringing. उत्तर, कविता के अनुसार कुबला खान को शहद और स्वर्ग का दूध पिलाया जाता है। यह कुबला खान के विशेषाधिकार प्राप्त पालन पोषण और उसके विशेषाधिकार प्राप्त पालन पोषण के कारण उसके पास मौजूद आंतरिक शक्तियों को दर्शाता है। As a future king, he also got proper mental conditioning in how to deal with conflicts and machinations which often happen inside and outside a king's palace. His flashing eyes and his floating hair depict the king's readiness to deal with any untoward situation. This is the discordant note which the question is talking about. भावी राजा के रूप में, उन्हें संघर्षों और षड्यंत्रों से निपटने के लिए उचित मानसिक कंडीशनिंग भी मिली, जो अक्सर राजा के महल के अंदर और बाहर होते हैं। उनकी चमकती आंखें और उनके लहराते बाल किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए राजा की तत्परता को दर्शाते हैं। यह वह असंगत नोट है जिसके बारे में प्रश्न में बात की जा रही है। Grandeur and turmoil are definitely a part of an emperor's life. An emperor is quite at home with all the luxuries which are bestowed on him by virtue of his royal lineage. But he also has to be always ready to with revolts, wars and coup. वैभव और उथल पुथल निश्चित रूप से एक सम्राट के जीवन का हिस्सा हैं। एक सम्राट को अपने शाही वंश के कारण मिलने वाली सभी सुख सुविधाओं से बहुत खुशी मिलती है, लेकिन उसे विद्रोह, युद्ध और तख्तापलट के लिए भी हमेशा तैयार रहना पड़ता है। Question 4. What are the lines that refer to magical elements? प्रश्न 4. जादुई तत्वों को संदर्भित करने वाली पंक्तियां क्या हैं? आंसर, फॉलोइंग लाइन्स रेफर टू मैजिकल एलिमेंट्स। उत्तर, निम्नलिखित पंक्तियां जादुई तत्वों का उल्लेख करती हैं। अ सेवेज प्लेस, एज होली एंड एन्चांटेड। एक जंगली जगह, उतनी ही पवित्र और मंत्रमुग्ध। एज एवर बीनीथ अ वेनिंग मून वॉज हॉन्टेड। जैसा कि हमेशा ढलते चांद के नीचे होता है। बाय वुमन वेलिंग फॉर हर डेमन लवर। अपने राक्षस प्रेमी के लिए विलाप करती महिला द्वारा। क्वेश्चन 5. व्हाट इज पोएटिक एक्सटेसी लाइकन टू? प्रश्न 5. काव्यात्मक परमानंद की तुलना किससे की जाती है? आंसर, अ स्टेट ऑफ ओवरवेलमिंग इमोशंस इज कॉल्ड एक्सटेसी. In this poem, the poet has used ecstasy in heavy doses. He has fused the real with the surreal with great aplomb. So, it can be said that this poetry is a great example of poetic ecstasy. उत्तर, भावनाओं के उमड़ने की स्थिति को परमानंद कहते हैं। इस कविता में कवि ने परमानंद का भरपूर इस्तेमाल किया है। उन्होंने वास्तविक और अत्यथार्थवादी को बहुत ही शानदार ढंग से मिलाया है। इसलिए, यह कहा जा सकता है कि यह कविता काव्यात्मक परमानंद का एक बेहतरीन उदाहरण है। Question 6. The poem is a fragment. What do you think has made it a lasting literary piece? प्रश्न 6. यह कविता एक अंश है। आपके अनुसार किस बात ने इसे एक स्थायी साहित्यिक कृति बना दिया है? Answer, it is mentioned in the introduction that this poem could not be completed. The story goes that once the poet was asleep under the influence of opium, and dreamt the sequence while he was asleep. He created this poem based on what he dreamt. Copious use of surrealism made this poem a lasting literary piece. उत्तर, परिचय में बताया गया है कि यह कविता पूरी नहीं हो सकी। कहानी यह है कि एक बार कवि अफीम के नशे में सो रहा था और सोते समय उसे यह दृश्य दिखाई दिया। उसने जो सपना देखा, उसके आधार पर उसने यह कविता रची। अत्यथार्थवाद के भरपूर इस्तेमाल ने इस कविता को एक स्थायी साहित्यिक कृति बना दिया। थैंक्स।